بات فی الحال نہیں کرنا چاہتا. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ سب جوڈس ہے. میں یہاں پر جیسے میں نے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا ہے, میں وکلا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پورے پروسیس میں ایسے وکلا بھی تھے جن کا ہماری جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن ایک وکیل ہونے کے ناطے, جسٹس کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے انہوں نے ساتھ دیا. ان کا بھی بہت شکریہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے آئی ایل ایف کے لوگ ہیں, دوسرے تمام لوگ ہیں, ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس ساری سپورٹ میں, اس ساری جگہ پر آنے کا. جو بات کروں گا وہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے. ایک طرف مجھے آپ زیادہ تر مولا جٹ ہی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور تعارف ہے جس کو نہ کبھی مجھے موقع ملا آپ کو بتانے کا, نہ ماحول تھا. جب سے آئے ہیں جنگ و جدلی ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا لیڈرشپ کے اندر, اس کے بعد میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا جو پی ایچ ڈی کے بعد کیا جاتا ہے, وہ بھی لیڈرشپ کے اندر کیا, اور میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں 1 دہائی سے زیادہ وہاں پروفیسر کے طور پر پڑھایا, اور ہزاروں سے زیادہ میرے وہاں پر سٹوڈنٹس ہیں. میری وہ نوکری تھی جو شاید ہی کوئی پاکستانی ڈریم کر سکے, اسپیشلی میری طرح کا پاکستانی. یہ میرے رشتہ دار کھڑے ہیں بہت سارے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں, جو ہمارے ابھی بھی وہاں ٹاٹ سکول ہی ہیں. جب میں پڑھا تھا تو 4 دیواری بھی نہیں تھی سکول کی, اور ایک کمرہ ہوتا تھا میرے پرائمری سکول میں جس میں سے میں پڑھا تھا. ہم 30 کی کلاس تھی, اس 30 کی کلاس میں سے ہم 3 لوگ ہائی سکول گئے تھے, اور پھر اسی 30 کی کلاس میں سے میں اکیلا تھا جو کالج گیا تھا. تو جب میں وہاں سے نکل کے, اور ہماری جو کلاس ہوتی تھی نا وہ ایک درخت کے نیچے ہوتی تھی, کیونکہ کمرہ ایک تھا, 5 کلاسز تھی. تو جیسے جیسے سورج گھومتا تھا ہماری کلاس بھی موو ہوتی تھی, کیونکہ وہ دھوپ درخت کی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی تھی. تو وہاں سے نکل کے جب میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی, بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار, جب میں وہاں سے نکل کے امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی, اور صرف سائز میں بڑی نہیں, جو جانتے ہیں اس یونیورسٹی کو ان کو پتا ہے کہ انجینئرنگ اور آئی ٹی میں وہ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے, اور اس یونیورسٹی میں جب مجھے پڑھانے کا موقع ملا تو میں اکیلا نہیں پڑھا رہا تھا وہاں, میرے ساتھ وہ میرے گاؤں کے پورے 30 کے 30 لوگ کھڑے ہو کے وہاں پڑھا رہے تھے, کیونکہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں, کاشتکاری ہمارا کام ہے, نہ ہمارے پاس کوئی مہنگے سکول تھے, نہ ہمیں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنی آتی تھی. ہمیں تو پہلے انگریزی سیکھنی پڑتی تھی جا کے 6ٹھی جماعت میں. ابھی لکھنا سیکھتے تھے تھوڑے دن, اس پر ڈنڈے پڑتے تھے, پتہ چلتا تھا ابھی بڑی اے بی سی لکھی, ابھی چھوٹی اے بی سی بھی لکھنی سیکھنی ہے. تو ہم ان مصیبتوں سے, جب میں کالج گیا تو موٹر سائیکل پہ کالج جاتا تھا, تو میرے گاؤں سے کالج 1 گھنٹہ دور تھا, اور جب میں صبح کیمسٹری کا پہلا لیکچر ہوتا تھا, اکرام الحق بھٹا صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ میرے پروفیسر تھے, تو ان کا پہلا لیکچر ہوتا تھا تو سردی میں ٹانگیں جو ہیں وہ اکڑ جاتی تھی. تو جو شہر سے لڑکے آتے تھے وہ پڑھنا شروع کرتے تھے, اور ہم پہلا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کسی آگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ اور ٹانگیں سیدھی کرتے تھے. تو ان حالات سے نکل کے میں پروفیسر بنا, اور پروفیسر بھی میں کسی ایسی یونیورسٹی میں نہیں بنا جس طرح کی بہت سارے جال ساز یہاں پھرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر بنا, اور میرے لیے میرے وہ جو 7 گاؤں ہیں ان سب کے لیے وہ فخر کی بات تھی. اس کے بعد جتنی یہاں پر کرپشن کر کے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جتنے عام ایم این ایز, عام ایم پی ایز, ان کا ڈریم ہوتا ہے, یہ ابھی ووٹ بکے تھے, لوٹے ہوئے تھے, جتنے پیسے لے کے یہ لوٹے ہوئے تھے نا, وہ میں 3-4 مہینے میں مجھے یونیورسٹی اتنے پیسے دیتی تھی, سال کی بات نہیں کر رہا. وہ سب کچھ چھوڑ کے میں عمران خان کے کاز پر اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا, اصل میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوا. اصل میں جو میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان کو پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو اورا تھا پوری دنیا کے اندر, 9/11 کے بعد بنا. میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے اسے دیکھا, دل دکھتا تھا اس چیز سے. اپنے خواب چلے سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ جی لیے تھے, تو لگا کہ اب اپنے گاؤں والوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے واپس جا کے کروں.
वापस जाके काम करूं। तो ये सारा सफर मैं याद कर रहा था जब उस दिन मैं बगैर किसी चटाई के फर्श पे वो जो तस्वीर आपने देखी थी मेरी हवालात के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें कुछ सोच रही थी। तो वो टाट स्कूल से उस यूनिवर्सिटी से उस हवालात तक का पूरा सफर सोच रही थी। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। अब वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों पे बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूं कि ज्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं। क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए। अब आप सिर्फ सोचें कि इस्लामाबाद मेरे इलाके से कितना दूर है, ये मेरे सारे लोगों को जब आना पड़ता है तो इनके ऊपर भी वो सारा बोझ है, एक टाइम का, वक्त का, एनर्जी का। तो इसलिए सियासतदान जो हैं वो इस राह पे चलते हैं जब तक हम एक अच्छा कानूनी निजाम नहीं लाएंगे जहां पर लोगों को ये यकीन होगा कि उन पे झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे और सियासत में से पैसे को अलग नहीं करेंगे, तो शायद ये करप्शन अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं। इसलिए हमें इस पूरे निजाम को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ना है कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बनाया जाए। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा, हम अपोजिशन में हैं, बैठ जाओ थोड़ी, हम अपोजिशन में हैं घुटनों के बार बैठ जाओ, तो हमारे ऊपर केसेस, कोई और अपोजिशन में है तो उस पर केसेस, हम हुकूमत में आए, हम हुकूमत में आए तो कोई और चीज। तो इसलिए मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूं कि जिस पर्पस के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम हो। आप सबकी सपोर्ट उसमें चाहिए, और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फौरन बाहर चली गई हैं। अब वहां बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोज इशू होंगी, वहां बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहां बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहां क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहे, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को सारे एक ही जैसे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूं यहां, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं, उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं, मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही साइन नारे लगते हैं, हम भी विक्ट्री। तो आम घर में बैठा बंदा सोचता है, कई दिलों लग रहे नारे तुहाडे। एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बंद, ये सारे ही करप्ट हैं। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क अब अंगड़ाई ले चुका है। सोशल मीडिया में जो सहाफियों का किरदार है, हम 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फोन की वजह से यहां बहुत सारे और सहाफी हैं जिनकी आवाज पहुंच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसातत के मुताबिक जो मेरे ज़िम्मे था, मैं इस मुल्क के साथ वफा भी करूं, इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूं, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूं कि उनके बच्चे भी कहीं पहुंच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीजें ना आए। जी साहब, आपके कमरे से जो सैटेलाइट वो किससे राब्ते के लिए था, और आपको पता है कि इस तरह का फोन रखना कानूनन जुर्म है? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि आप ये सहाफ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि पेशावर में दर्जनों के साथ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास ये फ़ोन है। एक आपको भी ले लेना चाहिए। वो इसलिए ले लेना चाहिए कि जब सुन लीजिए, जब आप किसी रिमोट एरिया में जाके काम करेंगे, सर्विस नहीं होगी तो आप वो कर सकते हैं। उनका शायद पाकिस्तान के अंदर दफ्तर भी है,
اور وہ यहाँ से आपको फ़ोन देते हैं, तो अगर ये फ़ोन ये बेचा गया बहुत जगह पे कि ये फ़ोन गैर कानूनी है, पता नहीं इसमें क्या है, तो ये बहुत सारे सहाफ़ियों के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जहाँ पर सर्विस नहीं है वहाँ से अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो करें। इसलिए आप अगर ऐसे रिमोट एरिया में सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आप भी करें। और हमारे तो गांव जो इलाके हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हो सकता है हमारे गांव में भी लोगों के पास हों, मुझे पता नहीं किस किस के पास होंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि जारी बात है आप जान के नहीं ये सवाल कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा इसलिए आपने ये सवाल किया होगा, तो इसलिए आपके देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि मामला सब जुडिस है, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो सब अदालत के सामने आ जाएगा। लेकिन उस फोन की जो आपने बात की मैं उसके जवाब दूं। साहब ये बता दें कि जो टाइम आपने जेल के अंदर गुजारा, भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में दोबारा आपकी हुकूमत है, केपी में भी आपकी हुकूमत है, क्या आप नहीं समझते कि जेल इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात लाने की सख्त जरूरत है? आपके ऊपर जो बीती होगी वो आप बेहतर जानते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर हमारे तो सारी चीज़ों का मसला ये कि आप जब ये कवानीन उठा के देखते हैं, जितने भी हैं, मैं वकील नहीं हूँ, ये जितने भी कवानीन दफात हैं सब कुछ हैं, तो ग़ुलामी के दौर की थी। वही दफात हम पे लग रही हैं जो अंग्रेज़ उस ज़माने में, वो तमाम की तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आबाओ अजदाद थे जो लड़ रहे थे उनके ऊपर लगती थी, जो वही दफात अब हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कवानीन उस ज़माने के अंग्रेज़ के 1800 कुछ के बनाए हुए हैं, जेल के कवानीन भी वही बनाए हुए हैं। तो मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई अमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फौरन। गुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहां देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है, मुशक्कत कर रहा है, मसलन उसको जेल में घास काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है, और आगे से कोई जेल का अमला आया है तो उसको अहकामात ये हैं कि वो जमीन पे बैठ जाएगा नजरें नीचे करके। ये आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है, तो गुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि गुलामी के ज़माने में ये बनाया था अंग्रेज़ ने इस तरह का कानून और जेलों के मैनुअल, वो आज भी उसी तरीके से इंप्लीमेंटेड हैं जेलों के अंदर। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कि ट्विटर पे ज़रा टाइम थोड़ा कम दें, आप ज़रा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचें। वहाँ पर जो लोग कैद हैं, मसलन अडयाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोलियां लगी, उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं टांगें, वो हॉस्पिटल के बेड पे हैं, उनकी कोई वहाँ पर अयादत करने वाला नहीं है, बाथरूम लेके जाने वाला नहीं है। उस तरह के लोगों का अगर आप अदालत के सामने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने उनकी तस्वीरें और केस रखेंगे तो वो उनको किसी हॉस्पिटल में बाहर शिफ्ट करेंगे। उधर कोई, मुझे सुनने में आया, मुझे मिलने नहीं दिया गया उनके साथ, 50 से ज्यादा ज़हनी मरीज लोग हैं, 35 बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं या अपनी माओं के साथ अंदर हैं। तो खुदारा उनके ऊपर तो तरस करें। और मैं अपने ही वजीर जो वहाँ हैं, सारी जेलों में ऐसा ही होगा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगा, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जब हमें वजारत मिलती है तो बुनियादी तौर पर वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ने उसका हिसाब लेना है हमसे। तो इन चीज़ों पे काम करें, औरतें वहाँ हैं उनके लिए काम करें, बच्चों के लिए करें, ज़हनी मजदूरों के लिए काम करें, ये जिनके मैंने बताया जिनकी टांगें टेढ़ी हुई हैं उनके लिए काम करें। थोड़े थोड़े फाइन है जिसकी वजह से लोग अंदर, मुझे जेल में लोग मिलने आते थे, पार्टी के बहुत सारे लोग आते थे, वो आपको पता हमारे यहाँ कल्चर है, जो भी जेल में आता है वो पैसे देता है आपको, या कोई फ्रूट लेके आता है, तो वो जितने भी पैसे देते थे वो मैं उस अकाउंट में जमा करता जाता, और जब मैं आया तो मैंने वो सारे पैसों से वो कैदी छुड़वा दिए जो फाइन के साथ छोड़े जा सकते थे। इसी तरह मैं और भी मुखैर हजरात को कहूँगा कि वो, ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा जो गरीब आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है जेल में, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आखिरी ये सोच है कि जो चला गया जेल में उसके बारे में ना हुकूमतें सोच रही हैं ना कोई और शख्स सोच रहा है। तो आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जेल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम नहीं करने, किसी और ने नहीं करने, और हमें सवाए बाकी ऐसे काम करने में जिनमें प्रोमिनेंस मिलती है, इन एरियाज़ पे भी काम करना चाहिए जिसमें असल में गरीब लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह की ज़ात आप पे राज़ी होगी। गिल साहब, आपने कहा था कि फिजिकल असॉल्ट आपको किया गया, क्या आप अपने इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू करेंगे, मेडिकल अपना करवाएंगे? देखिए मेडिकल तो मेरा जेल के अंदर हो चुका था और उसकी रिपोर्ट मौजूद है,
باقی میں نے آپ کو کہا کہ یہ کیونکہ سب جوڈس معاملہ ہے، میرے وکلا اس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. بہت شکریہ جی. تمہارا فون کون سا ہے؟ یہ والا. یار بہت مدد تیری.